Namaste everybody. Affirmation of the day. I accept the mental state that I am in and I rest myself. I work towards building a positive mindset each moment. Now, see, there's no machine that can really measure your stress here. We have a machine which is the BP instrument or sphygmomanometer, which measures the blood pressure. But unfortunately, we do not have any machine that measures your mental pressure, the stress that you're going through. It's okay if you're feeling low. It's okay to not be okay. You don't have to feel guilty about anything. You don't have to feel guilty about not having the interest to do anything in life suddenly for some time. It's okay. Whenever you feel that you really are not interested in doing anything and normal activities like eating, sleeping, socializing are not comfortable for you, it's okay. Rest yourself. Be kind to yourself. Just rest there. Be there with the courage that this too shall pass. Remember that you are not the only one going through ups and downs in life. You really don't know the stories that each one is living in their lives, the pain that people have been hiding behind their smiles and happy-go-lucky attitude. Each one of us is going through some situation or the other in their life, be it happy or sad. As I always say, life is full of ups and downs. Even a flat ECG denotes that the life is gone. There are some people who can handle their stress all by themselves. There are some people who have their loved ones, have their friends to talk to, and that's how they ease up their mental stress. But if you have nobody and you're going to a therapist to talk it out, to solve it out for you, you don't have to feel guilty. You don't have to feel that you're needing some professional help. Speak up. It's much better than piling things up into your head and getting bad thoughts or suicidal thoughts or self-berating, self-destructive thoughts. So just be confident in yourself, believe in yourself, and give yourself the rest. Give yourself the kindness and the love that it deserves. Be kind to yourself. All of us have been very harsh on ourselves, setting certain goals, setting the way a life should be, setting things that you should be achieving at a particular age in life. Just release all that. Release all of it. Release yourself from the pressure of how you are supposed to be in the mold of your loved ones or the society. Stop getting pressurized about you're supposed to get married at a certain age, you're supposed to have kids at a certain age, you're supposed to belong to this particular profession if your family or parents are in that profession, or you're supposed to be this successful at this age and you're supposed to earn at this age. It's no use building up mental pressure with all of these burdens in your head, because that's how the world is. Everybody wants to fit the other person in the mold that they have about them. But do we really check our own molds? No. So it's important that we do not even pressurize somebody else. It's as important to release our pressure and be stress-free as it is important to not give pressure or stress to people. Hence, just be kind to yourself. Stop limiting yourself or putting yourself in a particular mold. You are a free human being with unlimited, limitless potential. So just believe in yourself, breathe easy, relax for a while, and just let go. Just let go. Just let go and see how beautiful you will restart and conquer everything. It's important to breathe easy. Oh, it's lovely to be successful. It's lovely to be prosperous. It's lovely to have a family. It's lovely to get married on time, have kids on time. But I want you to realize that these are not the parameters of success. Your success isn't defined by all the materialistic things that you have achieved, the brand of clothes that you're wearing, or maybe you've gotten married, you have kids, you've raised your kids fine. True success is when you are at peace mentally and physically. If your health is in not good shape, if your physical health and your mental health is not in good shape, all of these parameters of success that you have set and the society has set for you are worthless. You will not really enjoy any of these. सफलता के मापदंड को ना बदलिए.
अगर सफलता का मापदंड सिर्फ ये नहीं होता कि आपके पास पैसे कितने हैं, आप समृद्ध कितने हैं, आप ऐश्वर्य कितना है आपके पास में, आपकी शादी समय पे हुई है, आपको बच्चे समय पे हो गया, प्रोफेशनली एक लेवल पे पहुंच गए हो, ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण और खूबसूरत चीज़ें, खूबसूरत पड़ाव है। बट अगर आप अपनी सफलता के मापदंड पे सिर्फ इन्हीं को रखेंगे ना, तो हर समय आप खुश रहेंगे ये नहीं होगा। बिकॉज फिर आपका गोल बदलता रहेगा। आज ये इससे सफलता मिल रही है, अच्छा अब मैं इससे बेहतर करूँगा तो मुझे और ज़्यादा खुशी मिलेगी, तो मैं ज़्यादा सफल हूँ। आपको सफलता का सत्य मापदंड आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य से है। मुझे बहुत सारे डीएम्स आते हैं ये कहते हुए कि मैम मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हूँ, मुझे ज़िंदगी में कुछ दिखाई नहीं देता है, मैं मर जाऊँगा, मैं मर जाऊँगी। और मुझे बात करने पे पता चलता है कि लोगों ने कितना प्रेशर अपने सर पे लगा रखा है। हमारे ब्लड प्रेशर को मापने की मशीन है, लेकिन हमारे मेंटल प्रेशर को मापने की मशीन नहीं है। इसलिए ध्यान रखिए कि आपको अपने मानसिक तनाव, मानसिक प्रेशर का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। और किसी भी चीज़ में रुचि नहीं होना, आपको इंटरेस्ट नहीं होना, आपको नॉर्मल एक्टिविटी जैसे खाना पीना, ये सारी चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं रहना, घूमना फिरना, दोस्तों से नहीं मिलना, ये टेम्पररी अगर इंटरेस्ट नहीं रहती है तो इट्स ओके। लो फील करना नॉर्मल है। हर एक की ज़िंदगी में ना उतार चढ़ाव आते हैं। हमें नहीं पता कि मुस्कुराते हुए चेहरे के पीछे कौन सा दुख है, या किस खुश चेहरे के पीछे वो कौन सी ज़िंदगी की लड़ाई लड़ रहे हैं। सबकी अपनी अपनी लड़ाइयाँ होती है, सबके अपने अपने पल होते हैं जो अपने अपने तरीके से लोग ओवरकम करते हैं। कुछ लोग अपने आप ही सॉल्व कर लेते हैं, कुछ लोगों के पास दोस्त होते, परिजन होते हैं, और जिनके पास ये नहीं है वो थेरेपिस्ट के पास जाते हैं। आप इनमें से कोई भी हो, इट्स ओके। आपको बुरा फील करने की या ग्लानि की या गिल्टी फील करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप नॉर्मल हैं। ज़्यादातर लोग ना खुद की एक विचारधारा की जेल में, या तो खुद की विचारों की जेल में या सोसाइटी के विचारों की जेल में ना बंद पड़े हुए हैं। जस्ट ब्रेक इट, निकलिए बाहर। आपने अगर ये सोच रखा है कि आपकी शादी इसी समय पे होनी चाहिए, आपको इतनी कमाई करनी ही है, या आपकी फैमिली इस बिज़नेस में तो आपको भी वही करना है, या आपका डिवोर्स हो गया है, या रिलेशनशिप्स ब्रेकअप हुए हैं, ये सारी चीज़ें अगण्य हैं। इनका प्रेशर मत लीजिए। हर एक की ज़िंदगी ना अलग अलग तरीके से लिख के आई होती है। हमें सिर्फ ध्यान रखना है कि हम इसे सुधारेंगे कैसे, अपने कर्मों से, अपने विचार से सुधारना है उसे। हर व्यक्ति ना चाहता है कि हम किसी दूसरे को अपने ढांचे में ढाल के रखें। वो पावर की फीलिंग होती है, राइट? और काफ़ी सारे लोगों में ये होती है। या तो लोग आपको अपने ढांचे में डाल के रखते हैं, या तो आपने खुद ही एक अपना इमेजिनरी मोल्ड बना के रखा है ढांचा कि भाई इसी में फिट होना चाहिए। अगर मेरी उम्र ये है, मेरा ये है एजुकेशन, तो मुझे इस ढांचे में फिट होना है। ये या तो आपने बनाया है, या आप उसी ढांचे में कैद है, अपने आप को संयमित रख रहे हैं जो सोसाइटी ने बनाई है, या आपके परिवार वालों ने, आपके आसपास के लोगों ने बनाई है। आपको ये ढांचा नहीं रखना है। आप फ्री ह्यूमन बीइंग है, आप एक बहुत ही स्वतंत्र आत्मा है। अपनी आत्मा को खुश रखिए और उसे आराम दीजिए। जब भी आपको ऐसे नकारात्मक विचार आए, डिप्रेशन वाले विचार आए, स्ट्रेस लगे, आप अपने आप को आराम दीजिए, बैठ जाइए, कुछ मत कीजिए, सिर्फ आंखें बंद करके म्यूज़िक सुनिए। जो मानसिक तनाव है ना, सत्य में वही सारी बीमारियों की जड़ है, वही शारीरिक तनाव और शारीरिक बीमारियों की जड़ है। इसीलिए आपको खुद को प्रेशर देना नहीं है। और अगर आप या आपका कोई परिजन आप पर या आप किसी और परिजन पर प्रेशर डाल रहा है कि भाई शादी कर लो, भाई नौकरी कर लो, भाई बच्चा कर लो, तो थोड़ा ब्रीद इजी करने दीजिए। जितनी तकलीफ़ हमें प्रेशर मिलती है तो होता है, उतनी ही तकलीफ़ हम किसी और को स्ट्रेस या प्रेशर देते हैं तो होता है। तो आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि खुद के ऊपर ना थोड़ी सी दया भावना दिखानी है, खुद के ऊपर थोड़ा सा प्यार दिखाना है। ये अत्यंत आवश्यक है स्वस्थ रहने के लिए, मानसिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए। बिकॉज़ अगर मैं आपको वो सब कुछ दे दूँ जो आपने मापदंड रखे हैं सफलता के, या सोसाइटी ने रखे हैं सफलता के, लेकिन अगर आपकी आत्मा खुश नहीं है और आपका शरीर स्वस्थ नहीं है ना, तो ये सब बेमानी है, इनकी कोई कीमत ही नहीं है। क्योंकि ये सब कुछ होने के बावजूद भी ना आप खुश नहीं रहेंगे, क्योंकि ये खुश मन, एक स्वस्थ मन और एक स्वस्थ शरीर सबसे बड़ी पूंजी है। सबसे ज़्यादा खुशियाँ ये दो चीज़ें ही देती है, इसलिए उन पर बहुत ज़्यादा ध्यान केंद्रित कीजिए। और अगर आपको ठीक नहीं लग रहा है तो इट्स ओके, मदद मांगने से मत चूकिए, लेकिन गलत विचार मत आने दीजिए। आपको एक बहुत ही बेहतरीन चीज़ बताती हूँ जो मैं करती हूँ जब मुझे स्ट्रेस होता है।
रूटीनली ना मैं अपनी माँ से या मेरी बेस्ट फ्रेंड दिव्या से बात कर लेती हूँ, या सब लोग जानते हैं अब तक कि मैं साईं बाबा में बहुत विश्वास करती हूँ, तो मैं सामने बैठ के उनकी तस्वीर के सामने उनके साथ शेयर कर लेती हूँ। ये मेरा तरीका है स्ट्रेस रिलीज़ करने का। और मैं हमेशा सबसे पहली चीज़ खुद को बोलती हूँ वो ये है, सरगम ये वक्त भी गुजर जाएगा, दिस टू शैल पास। हमेशा जब भी मुझे स्ट्रेस होता है ना, मैं अपने आप को ये शब्द ज़रूर बोलती हूँ, खुद को भी और दूसरों को भी जो मेरे पास आते हैं, कि सबसे पहले ये याद रखना कि ये वक्त भी गुजर जाएगा, दिस टू शैल पास। तो जब भी आपको लगे कि आप स्ट्रेस में हैं, तो मेरे ये शब्द हमेशा याद रखिएगा, ये वक्त भी गुजर जाएगा, दिस टू शैल पास। और मैं प्रार्थना करती हूँ कि आपकी ज़िंदगी सिर्फ़ और सिर्फ भरपूर खुशियों से भरी रहे और आप हमेशा स्वस्थ रहें। थैंक यू।